ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ الیکشن کمیشن نے 229 نشستوں اور غیر سرکاری نتائج جاری کر دیے۔ 6 نشستوں پر چیف الیکشن کمیشن کے نوٹس کے باعث نتائج روک لیے گئے۔ 15 جنوری کو 235 نشستوں پر انتخابات ہوئے تھے۔ مزید بات کرنے کے لیے اقتدار انور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اقتدار بتائیے گا کون سی پارٹی اب سر فہرست آ رہی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ 6 نشستوں کا جو نتیجہ ہے وہ کب جاری ہوگا؟ آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلاخر ایک بار پھر پارٹی پوزیشن جو ہے وہ واضح کی ہے۔ کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں تاحال پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نمبر 1 ہے۔ تاہم الیکشن کمیشن کی جانب سے 6 یونین کمیٹیز کے ریزلٹ جو ہے انہیں روکا گیا ہے اور 229 یونین کمیٹیوں کے ریزلٹ جو ہے جاری کیے گئے ہیں، جن کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی 91 سیٹوں کے ساتھ سر فہرست، جبکہ جماعت اسلامی نے 85 اور تحریک انصاف نے 42 نشستیں حاصل کی ہیں۔ مسلم لیگ نون نے 7، جے یو آئی نے 2 اور تحریک لبیک پاکستان نے 1 اور ایک آزاد امیدوار بھی یہاں پر کامیاب ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن پاکستان کے مطابق جو 6 سیٹیں جن کا رزلٹ روکا گیا ہے، ان میں سے 5 ڈسٹرکٹ ویسٹ میں اور 1 ضلع ایسٹ کے اندر واقع ہے، اور ان سیٹوں کا جو رزلٹ ہے وہ 28 تاریخ کو جاری کیا جائے گا، جس کے بعد تمام امیدواروں کی جیت کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کے حلف اٹھانے کی تاریخ جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ بہت شکریہ اقتدار، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لیاری گینگ وار کا سرغنہ، عزیر بلوچ ایک اور مقدمے سے بری ہو گیا۔ عزیر بلوچ 60 میں سے اب تک 25 مقدمات میں بری ہو چکا۔ اے ٹی سی نے عدم شواہد کی بنا پر عزیر بلوچ اور ذاکر کو بری کر دیا۔ عزیر بلوچ اور ذاکر ڈاڈا پر مخالف گینگ کے رکن کو قتل کرنے کا الزام بھی تھا۔ تفصیلات جانیں گے ممتاز جمالی سے۔ ممتاز، بتائیے گا 60 مقدمات ہیں، اب تک 25 مقدمات میں بری ہو چکے ہیں، یہ بری کیسے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، جب استغاثہ جو ہے اور پراسیکیوشن الزامات ثابت کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو یقیناً ملزمان بری ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آج انسداد دہشت گردی عدالت جوڈیشل کمپلیکس میں لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کے خلاف قتل کیس کا فیصلہ عدالت نے سنایا ہے۔ عدالت نے عدم شواہد کی بنا پر عزیر بلوچ اور ذاکر عرف ڈاڈا کو بری کر دیا ہے۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق پراسیکیوشن جو ہے ملزمان کے خلاف الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ عزیر بلوچ پر جھوٹے الزامات عائد کیے گئے ہیں، یہ کہنا ہے عزیر بلوچ کے وکیل کا، اور ان کے وکیل کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ گواہان کے بیانات میں تضاد ہے۔ پولیس کا یہ موقف ہے کہ عزیر بلوچ اور ذاکر ڈاڈا پر مخالف گینگ کے رکن عمران کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ ملزمان نے 2012 میں فائرنگ کر کے عمران کو جو ہے قتل کیا تھا۔ عزیر بلوچ اب تک 25 مقدمات میں جو ہے وہ بری ہو چکا ہے۔ عزیر بلوچ کے خلاف 60 سے زائد مقدمات جو ہیں درج کیے گئے تھے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ممتاز آپ کا۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر مہنگا ہو گیا۔ ڈالر 25 پیسے مہنگا ہو کر 240.75 روپے کا ہو گیا۔ یورو 1.50 روپے مہنگا ہو کر 275 روپے کا ہو گیا۔ برطانوی پاؤنڈ 1 روپے اضافے سے 313 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے۔ انٹر بینک کے بعد اب اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر مہنگا ہو گیا ہے۔ ڈالر 25 پیسے مہنگا ہو کر 240 روپے 75 پیسے کا ہو گیا ہے، جبکہ یورو 1 روپیہ 50 پیسے مہنگا ہو کر 275 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانوی پاؤنڈ 1 روپیہ اضافے سے 313 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ بات کریں گے اشرف خان سے۔ اشرف، بتائیے گا آج پھر ڈالر مہنگا ہوا ہے؟ جی ہاں، دیکھا جائے انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی جو ہے ڈالر مہنگا ہو گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انٹر بینک میں جیسے کہ ڈالر مہنگا ہوا، اسی طریقے سے اوپن مارکیٹ میں ڈالر 25 پیسے مہنگا ہو کر 240 روپے 75 پیسے پہ پہنچ گیا۔ ساتھ ہی دیکھا جائے دیگر کرنسی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا، اور اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اوپن مارکیٹ میں انٹر بینک میں ڈالر کی قدر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یورو، برطانوی پاؤنڈ، ان کی قدر میں جو ہے نمایاں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے 50 پیسے سے 1 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ سے آج بڑا فیصلہ بھی ہوا ہے ایکسچینج کمپنی کا، جس میں ایکسچینج کمپنی نے جو ڈالر کا کیپ عائد کیا تھا اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت شکریہ اشرف، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کا اہم اجلاس، چیئرمین ملک بوستان کا کہنا ہے کہ تمام ممبران نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے لیے لگائے جانے والا کیپ کل سے ختم کر دیا جائے گا۔ ملک بوستان نے کہا کہ کل اسٹیٹ بینک کو اس کے اثرات اور فائدے پر مکمل تفصیلات سے آگاہ بھی کر دیا جائے گا۔ کیپ ہٹانے سے بلیک مارکیٹ کا گیم ختم ہونے سے فائدہ ہوگا۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور تیسرا جو نیگیٹو آیا ہے، وہ کل جو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، جو امپورٹروں کا مال یہاں آیا ہوا ہے 18 جنوری سے، جتنے بھی ان کا یہ رستے میں
वो बैरून ममालिक से हासिल करके वो जो है फॉरेन एक्सचेंज चाहे उधार पे लें चाहे वहाँ से अरेंजमेंट करें अपने सोर्सेज से, तो अगर वो कर लेते हैं तो उनका जो है सामान है वो गुड्स रिलीज़ कर दिए जाए। तो उससे भी बड़ा पैनिक आ गया, उसमें बड़े पैमाने में हुंडी हवाले का रेट बढ़ गया, ब्लैक मार्केट का रेट बढ़ गया, और जिन लोग जो है वो छोटे छोटे जिनकी टीटियाँ हैं, जिनके छोटे छोटे रेमिडेंस हैं, जो छोटे छोटे सामान उन्होंने इम्पोर्ट किया हुआ है, वो आप वहाँ की मार्केट से ख़रीदेंगे और यहाँ सेटलमेंट अपनी करा लेंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ ब्लैक मार्केट में ये हुआ है, तो बहुत रेट आज बढ़ा है, 2 दिन में 5 रुपये बढ़ा है। तो हमने इस चीज़ को भी देखना है, इसका भी मुकाबला करना है। तो उसका मुकाबले का एक ही तरीका है कि हमें मार्केट रेट पे डॉलर को कोट करना चाहिए, उसमें ख़रीद के फ़रोख्त करनी चाहिए, और जो ही ये लोगों को डॉलर मिलना शुरू होगा तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली डॉलर का रेट कम शुरू हो जाएगा। जब ब्लैक मार्केट, जब बैंक और फ्री मार्केट का रेट बराबर हो जाएगा तो हमारी रेमिडेंस भी बढ़। सीनियर नायब सदर FPCCI शबीर मंशा का कहना है कि ताजिर पोर्ट पर कंटेनर्स फंसने के बायस बेहाल हो चुके हैं। $800 का माल भी पोर्ट पर फंसा हुआ है, जो ताजरों के लिए तबाही और परेशानी का बायस बन रहा है। पोर्ट पर कंटेनर्स की क्लियरेंस ना होने से ताजिरों की परेशानियां कम न हो सकीं। पोर्ट पर फंसे माल के हवाले से नित नई मुश्किलात जन्म लेने लगीं। सीनियर नायब सदर FPCCI शबीर मंशा का कहना है पोर्ट पर $800 का माल आया हुआ है जो क्लियर नहीं हो रहा। सिर्फ $872 की एक शिपमेंट है जिसको स्टेट बैंक ने 3 माह की परमिशन के बाद 84-85 में अलाउ किया था, और अलाउ करने के बाद कंपनी ने ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद यहाँ माल आ गए और आज तक कमर्शियल बैंक उसका नया नोटिफिकेशन आने के बाद उसको आज तक अप्रूव नहीं कर रहे हैं। शबीर मंशा का कहना है कि $9,000 का एक ऑर्डर 3 माह से पोर्ट पर खड़ा हुआ है, जिस पर हर माह हजारों डॉलर का जुर्माना लग रहा है। यही सूरत हाल रही तो कारोबार और ताजिर खत्म हो जाएंगे। $9,756 की शिपमेंट है, और उसको भी स्टेट बैंक रिलीज करने में उनकी यहाँ कमर्शियल बैंक की जो पॉलिसी आ रही है, जो रवैया हो रहा है, वो समझ से बालातर है कि अगर आप परमिशन दे देते हैं इंसान को 3-3 माह के इंतज़ार के बाद, और उसके बाद भी, और उसमें भी उन्होंने बैंक ने उनको फोर्स किया कि जी कि आप इसको DA करवा लीजिए। उन्होंने अपने सप्लायर से परमिशन के बाद DA भी करवा लिया है, और उस वक्त 120 दिन का और 180 दिन का उनका DA मौजूद है, और उसके बावजूद उसको रिलीज ना करना वाकई बड़ी तशवीश की बात। सीनियर नायब सदर FPCCI का कहना है हुकूमत फौरी स्टेट बैंक के रवैये का नोटिस ले और के लिए फौरी रिलीफ के इकदाम किए जाएं। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा हबीब खान, सिटी 21। बैंकिंग माहिरीन ने शरह सूद में 1% इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बैंकिंग माहिरीन अतीकुर रहमान ने कहा है कि छोटे पैमाने की सनतें शरह सूद और बैंकिंग स्प्रेड मिलाकर 21% शरह पर कर्जा कैसे लेंगे। छोटे पैमाने की सनतों को पैदावारी लागत बढ़ने से रकम की शदीद कमी का सामना है। इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी में 100 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज करके 17% पे कर दिया गया है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स का भी काफ़ी जिक्र किया गया है। इनफ्लोस और आउटफ्लोस के दरमियान एक गैप बताया गया है। हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस भी गिर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमिक डिबैकल है वो कोई अनसर्टेनिटी सिचुएशन पर खड़ा है। बार बार इजहार किया जाता है इस बात का कि बेसिस पॉइंट को बढ़ा दिया जाए, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो ये है कि एक्सेस टू फाइनेंस जो है वो डिफ़िकल्ट होता चला जा रहा है दिन पर दिन, और SMEs के लिए ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि उनको बैंक से फाइनेंसिंग की सहूलत जो है वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट होती चली जा रही है। अगर 84% कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी इस डिफ़िकल्टी में रहेगी तो फिर इस बैंक का बढ़ना किस हद तक सही है, ये एक सवालिया निशान है। साबिक सदर FPCCI नासिर हयात मगू ने कहा है कि दिसंबर 2021 के मुकाबले दिसंबर 2022 में बरामदात में 16% कमी हुई, किसी को फिक्र नहीं। उन्होंने कहा कि ये भी है कि दरामदी खाम माल पोर्ट पर फंसा हुआ है और अगले 3 माह में बरामदात मजीद कम होती नजर आ रही हैं। एक साल में बरामदात में 16% कमी। दिसंबर 21 की $2.76 करोड़ के मुकाबले दिसंबर 22 में $2.31 करोड़ की बरामदात रह गईं। FPCCI के साबिक सदर नासिर हयात मग्गू ने कहा कि माशी सूरत-ए-हाल अच्छी नहीं है। साफ कह दिया मौजूदा सूरत-ए-हाल में अगले 3 माह में बरामदात मजीद घटती नजर आ रही हैं। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, अगले 3 महीने की जो एक्सपोर्ट होगी वो बहुत कम होगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ इंडस्ट्री का ले ऑफ हो गया, ऑर्डर्स नहीं है, और रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी भी रोज़ बरोज़ शॉर्ट होती जा रही है।
ये सारा इम्पैक्ट मिला के मुझे लगता नहीं है कि आगे अगले महीने हम 2 बिलियन भी टच करें। नासिर मक्कू ने कहा कि दरामदी खाम माल क्लियर कराना एक मुश्किल तरीन टास्क बना दिया गया है। पैदावार कम होने से सनतों से मुलाजमीन को निकाला भी गया है। नासिर ने शिकवा किया कि सिर्फ बातें करके फंसे हुए माल को फौरी क्लियर कराने के बजाय ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। देखिए बात ये है कि इनका काम है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना। आज ही हम इनको एक खत भेज रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि आप हमें जो है ना इसका सॉल्यूशन दें और जो डेटा आपको चाहिए आप बैंक से ले लें। बैंक से आपके मातहत हैं, वो तो रोज़ डेटा बनाते हैं, कितने इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट आए, कितने एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट आए, हर चीज़ उनके पास फिंगर टिप्स पे है, वो तो अगले 10 मिनट में दे सकते हैं उनको। साबिक सदर FPCCI ने कहा कि 3 माह में भारी चार्जेस आयद होने से बहुत से माल की लागत से भी जायद हो चुकी है। कहा कि डॉलर अगर नहीं है तो इसका हल किसी न किसी तरीके से निकालना ही होगा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 20। के बाद आपको बताएं कि स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराद खान दुरानी ने सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद खान रिंद को मुअत्तल कर दिया। चार्जशीट भी जारी कर दी गई। 1 हफ्ते के अंदर वजाहत तलब कर ली गई है। सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद खान रिंद पर कानून साज इदारे को बदनाम करने का इल्ज़ाम था। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सराद खान दुरानी ने सिंध असम्बली के सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद खान रिंद को कानून साज इदारे सिंध असम्बली को बदनाम करने के इल्ज़ामी जो है मुअत्तल कर दिया है और उनको 2 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट भी जारी कर दी है और 1 हफ्ते के अंदर उनसे वज़ाहत तलब कर ली गई है। उन पर इल्ज़ाम आयद है कि उन्होंने जो है अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए स्पीकर और सेक्रेटरी सिंध असम्बली को बाईपास करके उनको नजरअंदाज करके उनकी मंजूरी के बगैर अहम दस्तावेज़ात जो है FIA, उसके अलावा IG सिंध और अदालतों में फराहम किए। इसके अलावा थर्ड पार्टियों के जरिए सिंध असम्बली की इंतजामिया के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाए, जिसमें खुद सुल्तानी गवाह बन गए और जो है उन्होंने सिंध असम्बली के जो रूल्स हैं या कानून कवानीन है उनको भी जो है उन अदालतों और अहम इदारों तक जो फराहम किए, जिसके बाद उन्होंने सिंध असम्बली की नफरत तौहीन किया है। इसके साथ साथ कानून साज इदारे को बदनाम किया, जिसके बाद उनको पहले जो है उनको चौकाल नोटिस दिया गया, जिसके बाद उनको आज मुअत्तल करने के साथ साथ 2 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट भी जारी कर दिया और 1 हफ्ते के अंदर उनको पाबंद बनाया गया है कि वो वजाहत करें कि उन्होंने इस तरह क्यों किया। जो अख्तियार उनके गैर इस्तेमाल नहीं थे तो अख्तियार का गलत इस्तेमाल करके एक कानून साज इदारे को उन्होंने बदनाम किया, जिसके बाद उनको मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल कर दिया गया है। ठीक है आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने 28 जनवरी से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। मसाइल हल ना होने पर वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दे दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। LPG इंडस्ट्री की हड़ताल का खतरा। कराची प्रेस क्लब में LPG एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन इरफान खोकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि LPG इंडस्ट्री में लूट मार करने वाले आ गए हैं। हुकूमत ने जनवरी के लिए LPG की कीमत 204 रुपए मुकर्रर की है, लेकिन फी किलो LPG की कीमत 300 रुपए तक पहुँचा दी गई है। SSGC और दीगर इदारे लूट मार में बाजी ले गए। आपको बताने का मकसद ये कि गवर्नमेंट की कीमत इस वक्त जो जनवरी के लिए है वो 204 रुपए है। आज अफसोस से कहना पड़ रहा है मुल्क भर में गैस 300 रुपए किलो पे पहुंच गई है। आज मैं कह रहा हूँ सरकारी इदारे बाजी ले गए, सरकारी इदारे लूट मार में SSGC बाजी ले गया। इरफान खोकर और दीगर बोले कि मुल्क में गैस की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। पसमानदा पहाड़ी इलाकों में फी किलो LPG 350 रुपए, गिलगित बल्तिस्तान में LPG 400 रुपए फी किलो तक पहुँचने का खदशा है। मुल्क में यौमिया 5000 टन LPG फरोख्त हो रही है। पहाड़ी इलाकों में गैस जो है 350 रुपए किलो है और गिलगित बल्तिस्तान के हुंजा वगैरह जो इलाके हैं वहाँ पे 400 रुपए किलो पहुँच की गैस बिल्कुल नायाब हो चुकी है। इस वक्त आपकी मुल्क की खपत जो है वो 4500 टन से 5000 टन क्रॉस कर गई है। 4500 टन से 5000 टन तक क्रॉस कर गई है और हमें इम्पोर्ट की जरूरत है। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर लोकल प्रोडक्शन अमल में आ जाती है 30-40 हज़ार टन और गर्मियों में बहुत या सर्दियों में भी होती है तो लोकल प्रोडक्शन देखिए जाम शुरू हो, ये बाकी कोई प्रोडक्शन पाकिस्तान की लोकल पैदावार बढ़नी चाहिए। मौजूदा सूरत में डॉलर की किल्लत, बदतरीन माशी बहरान में माफिया से छुटकारे और खुद इन्हिसारी की इक़दामात इंतहाई जरूरी हो गए हैं। मैं गुलफाम के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। गैस की अदम फराहमी पर लियारी की खवातीन ने बच्चों समेत सड़क पर एहतजाज किया। खवातीन ने हुकूमत से शिकायत के अनबार लगा दिए। कहा कि बिल अदा करने के बावजूद भी गैस नहीं आती, बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं।
लियारी में गैस का मीटर रुकने पर खवातीन का मीटर घूम गया। गैस का शदीद बहरान लियारी वालों के सब्र का इम्तिहान बन गया। खवातीन का मेमन चौक पर शदीद एहतजाज, लियारी को गैस दो के नारे। सरापा एहतजाज, खवातीन कहती हैं शिकायत करने और बिल अदा करने के बावजूद गैस नहीं आ रही। महंगाई की वजह से लकड़ियां खरीदना भी मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल आता है। वेमन सोसाइटी खड़ा मार्केट में कोई गैस नहीं है। 6 महीने से हम बाहर से बच्चों को लेके खिला रहे हैं। हम गैस के बाटले भरवाएं, गैस के बिल भी आ रहे हैं। हम बिल भरें या बाटले भरवाएं या पेट भरें। खवातीन का कहना है कि बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं। गैस ना होने के बाइस मुश्किलात बढ़ गई हैं। पानी भी नहीं होते जो बच्चों मुंह हाथ धो ले, ऐसे वजह चले जाते हैं स्कूल में। गैस सही नहीं, हम खाना नहीं पका सकते। बेटा लकड़ी जला जला के मेरे आंखें का नजर नहीं हो रहा। देख, हुकूमत की जानिब से शहर में बिला तातुल गैस की फराहमी के दावे धरे रह गए हैं। शहरी खाना बनाने के औकात में भी गैर रूम है। कैमरामैन काशिफ खान के इमरक, काविश मेमन, सिटी 21। FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अफगान मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान पूछे गए सवालात पर हुक्काम को मुतमईन नहीं कर सका। FIA इमिग्रेशन हुकाम ने कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई में गिरफ्तार अफगान बाशिंदे को गिरफ्तार किया। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम खान मोहम्मद अपनी जाए पैदाइश और अपने ख़ानदान के अफराद के हवाले से मुकम्मल तौर पर लाइल्म था। खान मोहम्मद मुलाजमत की गर्ज से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर UAE जा रहा था। मुलजिम को कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। शहर कायद की होलसेल मेडिसन मार्केट में भी अद्वियात गायब होने लगी। वाइस चेयरमैन मेडिसन मार्केट ने कंपनियों की बंदी से मुतालिक बड़ा दावा कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची नए बहरान की जानिब बढ़ने लगा। अद्वियात का बहरान संगीन हो गया। होलसेल मार्केट भी लपेट में आ गई। वाइस चेयरमैन मेडिसन मार्केट आमिर मलिक कहते हैं कि बैंक LCs नहीं खोल रहे। इंपोर्टर्स के बैंक में मुसलसल झगड़े हो रहे हैं। एक हफ्ते से 700 मेडिसन कंपनियां बंद होने की खदशात हैं। और बैंकों में मुसलसल अपना इंपोर्टर के झगड़े हो रहे हैं कि बैंक जो भी है कि बैंक कहता है जी हमारे पास डॉलर नहीं है। इस वजह से रॉ मटेरियल आ नहीं रहा और तकरीबन ये पोजीशन है कि कंपनियां बिल्कुल बंद होने के मुकाम पे आ चुकी हैं। हफ्ता या 10 दिन के अंदर मैं समझता हूँ 700 से 800 कंपनियां जो कि जानलेवा अपना क्या कहते हैं कि लाइफ सेविंग जो अपना ड्रग्स जो है वो बना रही हैं और वो भी बंद होने के ऊपर है। आमिर मलिक ने खदशे का इजहार करते हुए कहा कि अगर कंपनियां बंद होंगी तो मेडिसन मार्केट भी बंद हो जाएगी। इस वक्त भी अद्वियात की कमी के बायस कीमतों में इजाफा हो रहा है। कफ सिरप 40 रुपए महंगा हो गया है। चीज तय नहीं होगी कि ये हमें प्रॉपर मेडिसन या कफ सिरप या सर्जिकल के आलात खास तौर पे जो कि टोटल इंपोर्ट होते हैं वो बिल्कुल शॉर्ट हो चुके हैं ये इस वक्त। और शॉर्ट होने की वजह से लोग अपने रेटों पे मनमानी करके बेचते हैं। हुकूमती अदम तवज्जही के सबब शहर की मेडिकल स्टोर्स पर जिस्म के दर्द, शुगर और दीगर बीमारियों की अद्वियात की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया है। कैमरामैन कयूम के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। कुलसूम बाई वलीका अस्पताल में पीपल्स डॉक्टर फोरम यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में नौमुंतखब ओहदेदारों से हल्फ लिया गया। पीपल्स डॉक्टर फोरम की जानिब से मंगूपीर कुलसूम बाई वलीका अस्पताल में नए यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में ओहदेदारों और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सिटी 21 से गुफ्तगू में सूबाई नायब सदर डॉक्टर खैर मोहम्मद नारेजो ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को आगे लेकर चलेंगे। हमारा पीपल्स डॉक्टर्स फोरम यूनिट का आज वलीका हॉस्पिटल का इफ्तिताह था और ये एक हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक विंग है, क्योंकि ये फ़लसफ़ा और ये रास्ता हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दिखाया। 9 मुंतखब ओहदेदारान ने इस अज़म का इजहार किया कि वो गरीब शहरियों की बिला तफरीक मदद करेंगे। यूनिट खोलने का मकसद ये है कि यहाँ पे जितने भी डॉक्टर के मसाइल हैं या पेशेंट जो यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, जो भी उनके परेशानी है, वो हम बाकायदा यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको हल कर सके। इफ्तिताही तकरीब में पीपल्स डॉक्टर फोरम के सूबाई सदर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक शेख, कराची डिवीजन के सदर आशिक शाह, शाह मोहम्मद नुनारी समेत दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जबकि नौ मुंतखब सदर डॉक्टर रुमाना, सीनियर नायब सदर डॉक्टर अंबर, नायब सदर डॉक्टर असद, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर साहिब जान, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अनस, डिप्टी ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर जवाद और इतलात सेक्रेटरी डॉक्टर सोमालिया से हल्फ लिया गया। कैमरामैन अजलान के साथ रावेल अशरफ, सिटी 21।
साहिल समंदर को साफ रखने के लिए ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की जानिब से बीच क्लीनिंग ड्राइव का इनेकाद किया गया। मजीद इस रिपोर्ट में। साहिल को साफ सुथरा रखें, माहौल बेहतर बनाएं। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी भी साहिल की सफाई के लिए मैदान में आ गई। माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए बीच क्लीनिंग ड्राइव का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद तलबा में सफाई से मुताल्लिक शऊर उजागर करना भी था, ताकि वो अपने घर, मोहल्ले, इलाके और फिर मुल्क में साफ माहौल के लिए किरदार अदा कर सकें। सीवीयू पर बीच क्लीनिंग ड्राइव सुबह 9 से शुरू होकर 12 बजे तक इख्तिताम पजीर हुई मुहिम में बच्चों के साथ साथ असातिज़ा ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यूनिवर्सिटी टीचर ताहिरा तारिक ने कहा कि जामा के तलबा से ज्यादा स्कूल के बच्चों में सफाई से मुतालिक आगाही देना जरूरी है। और थैंक यू वेरी मच मीडिया पार्टनर C21। मेरा ख्याल है अगर हम सब मिलकर इसी तरह से स्टूडेंट्स को, ये एज है जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बीच क्लीनिंग करने आते हैं, वो मैच्योर हैं, उनको पता है कि हम अगर यहाँ पर शॉपर या रैपर्स चीज़ें फेंकेंगे तो इस तरह से सी एनिमल्स को क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन ये जो बच्चे हैं इनको इस वक्त गाइडलाइन देनी है। क्लीनिंग ड्राइव में शरीक स्कूल हेड मिस्ट्रेस ने कहा कि बच्चों को इस ड्राइव का हिस्सा बनाने का मकसद उन्हें सफाई की आगाही देने के साथ साथ आबी हयात की अहमियत से भी रोशनास कराना था। ड्राइव का मकसद ये है कि पोल्यूशन जो है वो ख़त्म करें। हम जो हमारे सबसे मेन जो है वो हमने सीवीयू से स्टार्ट लिया है। थैंक यू सो मच ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने हमारे स्कूल के बच्चों को इस बात की तरफ जो है राग़िब किया और ये इतना अच्छा प्रोग्राम जो है वो अरेंज किया। इसी बच्चे भी क्लीनिंग ड्राइव में शिरकत और माहौल में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने पर खुश नजर आए। ये टॉपिक बोलना चाहती हूँ कि हमें ये जो समंदर जो है हमें इन्हें साफ रखना चाहिए और हमें अपना मुल्क साफ रखना चाहिए। हमें समंदर साफ रखना चाहिए और अपना मुल्क साफ रखना चाहिए। शुक्रिया। डायरेक्टर इस्माइल इंडस्ट्री आरिफ हुसैन का कहना था कि माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक छोटा सा कदम उठाया है। उम्मीद है कि ये ड्राइव माहौल में बेहतरी के लिए अहम किरदार अदा करेगी। कैमरामैन हसनैन के साथ रूहा फातिमा, City21। माशरती तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा करने वाली लाइब्रेरी IT और स्मार्टफोन्स के जदीद दौर में अपनी अहमियत खोती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। इंसान का बेहतरीन सरमाया लाइब्रेरी जदीद दौर में अपनी अहमियत खोती जा रही है। लाइब्रेरी ने माशरती तरक्की और इल्मी आबियारी में सबसे अहम किरदार अदा किया। ताहम IT और स्मार्टफोन्स के जदीद दौर में लाइब्रेरी की अहमियत शदीद मुतासिर हुई। मलीर बार एसोसिएशन की नौमुंतखब लाइब्रेरियन इंसा बेनज़ीर अवान कहती हैं, जदीद दौर में तरक्की करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी वक्त की अहम ज़रूरत है। अभी ये जदीद मॉडर्न दौर में जो किताब की अहमियत दिन ब दिन कम होती जा रही है और ई लाइब्रेरी की तरफ भी हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन किताब की अहमियत अपनी जगह और इंशाल्लाह हम अपनी किताबों का ज़ख़ीरा जो इसमें अभी स्कैसिटी हमारे पास बुक्स की हमारी लाइब्रेरी में जो कम है किताबें वगैरह, इंशाल्लाह हम उसको जो है उस पर वर्कआउट करेंगे। वकला कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डिजिटल लाइब्रेरी की सहूलियात के बावजूद भी किताब की अहमियत को किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। जब तक हम बुक और किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, लॉ की प्रॉपर नॉलेज हासिल नहीं करेंगे। तो मेरी तमाम नौजवान को, हम यंगस्टर्स को, हमारे दोस्तों को यही अपील करेंगे, बुक की स्टडी करें। बुक की रिसर्च करने के बाद ही आप लॉ को फॉलो कर सकेंगे और अपने आप को आगे डेवलप कर सकेंगे। बेसिक तो जो है हमें हर चीज़ मिलती ही किताब से है। अगर किताब की अहमियत को नहीं जानेंगे तो ई लाइब्रेरी से भी हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अहले इल्म के मुताबिक मुल्क में लाइब्रेरीज का क़याम माशरती और इल्मी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। नई नस्ल को अगर कुतुब्बीनी की तरफ राग़िब किया जाए तो माशरा तरक्की के मनाजिल तय करेगा। किताबों की अहमियत समझने वाले अफराद के मुताबिक एक अच्छी लाइब्रेरी नस्ल इंसानी की दस्तावेज है। ताहम मुल्क में लाइब्रेरीज की कम तादाद एक लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन साजिद अली के साथ शहरियार सिद्दीकी, City21। सिंध वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गुलशन इकबाल में सोशल वेलफेयर काउंसिल का इजलास हुआ। तफसीलात बताएंगी रूहा फातिमा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे सोशल वेलफेयर जो है काउंसिल का इजलास हुआ था। इस इजलास में क्या तय पाया, आइए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर के मोहम्मद साजिद जोखियो साहब, तो आइए उनसे जानते हैं। जी आज काउंसिल की मीटिंग थी और ये जो मीटिंग थी इसमें इतने बड़े इश्यूज एजेंडा तो नहीं था, 5-6 इंट्रोडक्शन थी क्योंकि ये पहली मीटिंग थी और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस देने थे, जो मेंबरान थे, जो उनसे लेने थे, जो हमने देने थे वो सारे दिए हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम जो काउंसिल है इस काउंसिल को आगे बढ़ाकर जो सोशल वेलफेयर के काम हैं जो हमारे ऊपर लागू होते हैं वो हम करें।
तो उस लिहाज से ये मीटिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का करम है कि सारे मेंबरान अच्छे और समझदार और पढ़े लिखे आए हैं। तो इसमें ये होगा कि मैंने इंस्ट्रक्शंस ये दिए हैं कि आप मेंबर हैं, पूरी सिंध का मेंबर है होता है ये मेंबर, तो आप जो एनजीओस काम कर रही हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर काम कर रही हैं, उनकी लुक आफ्टर करना उस मेंबर का काम भी होता है। क्योंकि डीसी तो होता है अपनी जगह पर, मगर डीसी को इतना ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं होता, और ग्राउंड रियलिटी हमारे ये मेंबर जाकर देखें कि वहाँ काम हो रहा है नहीं हो रहा है, और कौन कौन सी एनजीओज किस किस ज़िले के अंदर काम कर रही है और क्या काम कर रही है। जब फंडिंग, क्योंकि फंडिंग दो टाइप की, एक इंटरनेशनल फंडिंग होती है, एक यहाँ जो हमारा सूबा है वो करता है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। जी बिल्कुल, मोहम्मद साजिद जोखियों साहब का यही कहना था कि जो एनजीओज जहाँ जहाँ काम कर रही हैं उनको लुक आफ्टर करने के लिए इसी मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया था, ताकि जो भी एनजीओज हैं वो जहाँ जहाँ जिस तरह से काम कर रही हैं उनको देखभाल किया जाए। जी रक्स, अदाकारी और गुलकारी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए आर्ट्स काउंसिल कराची में यूथ फेस्टिवल नौजवानों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मजीद इस रिपोर्ट में। कहते हैं किस्मत बदलती है हर पल, हिम्मत है तो आगे चल। अपनी किस्मत बदलने और ख्वाबों की ताबीर लिए ये नौजवान मौजूद हैं कराची आर्ट्स काउंसिल में। यूथ फेस्टिवल के दूसरे रोज अदाकारी, रक्स, गुलकारी, तकरीर और मजबून नवेसी के ऑडिशन मुनक्किद किए गए। कारी के जुनून में डूबे नौजवानों ने जजिस को अपने मनपसंद गाने सुनाए। किसी की हुई पसीराई तो गलत गाने पर हुई किसी की खिंचाई। तो ये स्माइल को अपने डांस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन चाहिए, आपने डांस अच्छा किया, मूव अच्छे हैं, लेकिन एक्सप्रेशन। यूथ फेस्टिवल के दूसरे रोज भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों ने अपने मनपसंद शोबों में ऑडिशंस दिए। अदाकारी, सदाकारी और गुलकारी का फन अपने आप में समोए ये नौजवान मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए इस उम्मीद के साथ यहाँ मौजूद हैं कि कभी ना कभी तो इनकी मंजिल मिल ही जाएगी। कैमरामैन अजमल शाह के साथ राहिल बेग, सिटी 21। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।